I'll give a quick introduction of Sure, sure. Shweta. Yeah. So today's topic is tips and techniques to become financially independent women, right? So our mentor and coach and speaker for today is Shweta, who's worked in banks for 12 years, two renowned banks, that is Axis and ICICI. So after more than 12 years of her career, she started her own coaching, and that is post maternity. And now she's on a mission to train women about saving money and investing. Right, Shweta? Okay. Absolutely. Apart from this, Shweta is also good at playing chess. She loves playing badminton and she loves to listen to music. So that's about our Shweta. Shweta, you would like to add Perfect. anything? No, no, it's a wonderful introduction of mine. Thank you so much. I'm Yeah, touched. and Shweta, we are very thankful, grateful to have you on this platform. Please Most welcome. start with your session. Like, let us start with our session. And I hope Sure. that after this session, all the women are encouraged and empowered towards investing and saving money. Yeah, absolutely. I would love that. Yeah. So let's start with the questions. I've noted down a few questions, and we can Yeah, yeah. take a few questions from the audience. Right? Audience also. Yeah. Yeah. So, Shweta, what is the best way to start investing for a woman or a mom? Sure. So, women first, she needs to understand. So there are two, three steps that she needs to find out. First, she needs to understand what are the assets and liabilities she has currently, whether कोई debt तो नहीं है और assets क्या क्या है उनके and all that, so that she can identify that this much money I have, and then the second step is set a goal. So once we identify that asset liability thing, now we can plan to have a new goal like short, medium, and long term goal. Short term goal, it would be like less than 3 years. Medium term goal would be 5 to 7 years. And the long term goal would be more than 10 years. So accordingly, she can plan the goal. This is the second step. Third step is how much money and by when. It will more or less attach to your goal only. Like if you are planning for short term goal and you required, say, for example, 1 lakh rupees for short term goal, like within 3 years, 1 lakh or 5 lakhs, whatever is the amount, depending on your goal. So by what, by when and how much money. This is the bifurcation she has to give. Like for this amount, for 5 lakhs, I required after 3 years. That goal has to be there. Okay, this is the third thing. Fourth thing is how much risk she can take. Okay, Right. जैसे ही मैंने कल बताया था risk let's understand the risk. What is the risk is something, if you have 1,000 rupees, whether you are okay to lose 100 rupees in that 1,000 rupees or not. It could be different from anyone. My risk taking capacity is different, your risk taking capacity is different. Maybe I am not able to lose in 1,000 rupees 100 rupees. I'm not okay with that if I lose 100 rupees. Maybe you are okay, like 1,000 rupees है तो you are okay with कि अगर 100 rupees चला भी गया तो that I'm okay. That is risk taking capacity. So that she needs to check कि कितना Depends on risk the वो ले individual. सकती हैं. इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. किसी के पास सपोज फॉर एग्जांपल दे हैव अ बल्क अमाउंट लाइक एज अ सेविंग्स ऑलरेडी, मे बी फादर मदर, और कभी कभार होता है ना कि हमारे मतलब जनरेशन्स का कुछ पैसा है, लाइक किसी के पास अगर अच्छा प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, जिसके पास वेल्थ है क्रिएशन ऑलरेडी, तो उनको उतना रिस्क का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता. लाइक दे कैन लूज 30% ऑल्सो, 20% ऑल्सो. लाइक अगर किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, इफ दे हैव ओनली द 10 लाख रुपीज, तो दे विल बी वेरी और थोड़ा डर लगा रहेगा कि कहीं मुझे ये लूज ना हो जाओ, कहीं थोड़ा पैसा डूब ना जाए, काइंड ऑफ. तो दैट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शुड डिपेंड्स ऑन वन टू वन. इट्स नॉट सबका एक जैसा नहीं Right. होता. सो दिस इज द फोर्थ स्टेप. एंड द फिफ्थ स्टेप इज वेयर टू इन्वेस्ट एज पर योर रिस्क taking capacity and goal. We will identify few instruments, like अगर किसी को रिस्क लेना है तो दे कैन गो टू म्यूचुअल फंड. अगर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, गो फॉर एफडीज, लाइक दैट. तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, दैट इज ऑल्सो she needs to take care of. So these 5 steps will be sufficient for to Mode of start with. investment.
Yes, Right. they can start with these So five these are steps. 5 steps. First is she needs to decide the goal. Second, she needs to decide whether the goal is long term, short term, or medium. Yeah, Third, goal what में amount yeah, of this money? is Okay. required. So second is what amount of money she wants to invest. Yes. Amount of the money, right? What how much amount you required for that particular goal. For short term goal, for example, I'll give you the example. For example, if you required say, if you want to buy a jewelry, for example, and you need 5 lakh rupees for that. So you need to know कि 5 lakh rupees I want after 3 years. Accordingly, she has to invest from now. आज से स्टार्ट करना पड़ेगा उस 5 lakhs को अचीव करने के लिए एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंगली कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे सो दैट वी कैन रीच दैट 5 lakhs rupees आफ्टर 3 years. Right. Okay. Yeah. So then next is risk capacity and the last is mode of investment. कि कहाँ पे Yes. उसे Where to invest invest? करें. Exactly. To Right. achieve that goal. Okay. So next thing I want to ask is, how do we encourage more women to come forward and learn finances? See, because usually Okay. we have seen that finance management या financial part जो है, it is being managed by male members mostly, like Yes. 90% of the time. Only 10% Yes. रहेगा जहाँ पे women अपनी डोर अपने हाथ में लेती है. So how do we exactly encourage them to do it? And I think that's the mission you are carrying on your shoulders. Like, Absolutely right? right. Yes, yes, absolutely. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपने बोला कि उनको पता होना चाहिए, दे नीड टू बी अवेयर कि आपको भी करना है, आपकी भी रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में, या आपके आपकी अपनी रिक्वायरमेंट भी है. सिंस वी आर वेरी ओके विथ डूइंग लाइक अगर हस्बैंड कर रहे हैं या ब्रदर कर रहे हैं या फादर कर रहे हैं तो वी आर ओके, वी आर अलाउइंग देम टू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. तो स्टार्ट तो हमें खुद से करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि बिलीव इन योरसेल्फ कि यू कैन ऑल्सो डू. पहले तो वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि दे डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज कि कहीं और किया रिस्क नहीं में है कहीं तो पैसा डूब ना जाए, कभी किया भी नहीं है. दो तीन चीजें हैं. right. एक तो बिल्कुल ठीक है, एक एक तरीके के लोग हैं जो बिल्कुल ओके है कि दे आर डूइंग इट, मुझे अपना सर नहीं खपाना उसमें, आई एम फाइन विद इट. दूसरे हैं कि दे वांट टू डू इट बट दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज, तो उन्हें लगता है कि चलो ठीक है जो भी है मैं अपने ड्रॉर में ही सेव रखती हूँ, आई एम फाइन विद इट. एक तो ये दूसरे तरीके है. सेकंड और एक और तरीका ये है कि कई बार आप देखोगे कि मेन ही दे आर नॉट इनकरेजिंग वुमेन टू कम फॉरवर्ड एंड डू इट. बहुत मेन भी कई ऐसे सोसाइटी या फिर गांव वगैरह में भी अगर आप चले जाओ विलेजेस में तो दे डोंट नो, वुमेन आर नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट मनी. सम बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ पे दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट मनी. लड़कियों को इवन वी सी की शादी होती है या फिर लड़के से मिलने जा रही हैं तो दे आर नॉट अलाउड टू से कि हाँ मनी के बारे में कुछ बातें मत करना. मे बी शादी ये ना हो, अग्री ना करे, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे माइंड में डाली जाती हैं फ्रॉम सोसाइटी एंड फैमिलीज. सो इट्स नॉट किसी का फॉल्ट नहीं है इसमें. दीज आर द कंडीशनिंग जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है. डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम टू ब्रेन वॉश आर ओन ब्रेन, बट वैसे ही आएगा जैसे हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एंड देन विल encourage other women to come forward and learn. But first है कि they have to understand कि मुझे करना है. पहला बिलीव तो वहां से आना चाहिए because nobody else is going to do for you if you're not willing to come and learn or something. They are okay अगर आप ड्रॉर में ही सेव करना, और ड्रॉर वाली बात आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ड्रॉर में सेव करना इज नॉट अ सेविंग. ओके, बिकॉज यू आर वो एक नॉट का दो नहीं होने वाला है. एक का दो You नहीं have to होने वाला है. invest. एज सिंपल एज दैट. Right, एग्जैक्टली. right. उसके ग्रोथ के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर सो दैट इट विल बीट इन्फ्लेशन एंड आपको उतना पैसा लाके वो दे जो आज उसकी वैल्यू बढ़े. इन सिंपल टर्म उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए टाइम के साथ, तो जो ड्रॉर में नहीं होगी. Right. So these are the So few things first that thing women is need to कि understand. हमारी डिजायर्स एंड विशेस हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता. एग्जैक्टली Right? एग्जैक्टली. So हमारी basis डिजायर of एंड विशेस that हम कई बार खुद से. कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं. यस, हम Right. कम्युनिकेट नहीं करते और ना ही मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ वुमेन के डिजायर्स और उसके अकॉर्डिंगली प्लान किए जाते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत कम होता है ऐसा. इफ यू आर नॉट विलिंग टू लाइक अपना पैसा खुद से मैनेज नहीं करना शुरू करोगे तो फिर अपने गोल्स भी वैसे ही चले जाएंगे. फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं.
तो दैट शुड नॉट हैपन। इनिशिएट हमें करना है, राइट? इनिशिएट हमें करना, ऑब्वियसली। वेरी नाइस श्वेता, करेक्ट करेक्ट। ओके श्वेता, तो आपने जो बताया कि ड्रॉर में पैसे नहीं रखने हैं, तो हम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। What are the different mode of investment where they can start investing? मतलब एक बेसिक नॉलेज दे सकते हैं हम अपने हमारे ऑडियंस। श्योर श्योर। जो वुमेन बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं, बिल्कुल भी नए हैं, लाइक कुछ भी नहीं पता उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में, और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे होता है, इवन बैंक अकाउंट एंड ऑल दैट, वो अपना बैंक अकाउंट अगर मैनेज कर सकती हैं, एटलीस्ट कुछ तो वुमेन है जो बैंक अकाउंट इज ओके, उतना एजुकेशन तो है कि बैंक अकाउंट मैनेज कर सकती हैं, तो दे कैन स्टार्ट विथ एन आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, जो बैंक में होता है, किसी भी बैंक में, जहां पे भी बैंक अकाउंट है, इफ दे कैन गो इन द बैंक, वहां पे अगर आरडी ओपन करना चाहे तो दे कैन डू। इवन अगर बैंक अकाउंट है तो यू कैन यूज, नाउ इतना टेक सेवी है सब लोग, तो मोबाइल बैंकिंग इज अवेलेबल, आप ऑनलाइन सारी कुछ आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, यू नो, मोबाइल पे आप सारा कुछ कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, एसआईपीज कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, एनीथिंग। अगर आपने कभी भी सेविंग नहीं किया तो स्टार्ट विथ इन रेकरिंग डिपॉजिट, क्योंकि वो हैबिट आना भी बहुत जरूरी है खुद में। फर्स्ट इनकलकेट दैट हैबिट इनसाइड यू कि सेविंग्स करना है मुझे हर महीने। स्टार्ट विथ 1000 रुपीज, 500 रुपीज, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। देन इफ यू वांट टू गो फर्दर, देन गो फॉर एसआईपीज, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। अगर थोड़ी सी अवेयरनेस है, आरडी से अच्छा रिटर्न कुछ चाहिए आपको, तो फिर गो विथ एसआईपीज। एसआईपी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन। एसआईपी में भी आपने दो ऑप्शंस बताए थे, डेट एंड ग्रोथ। मैं खुद सीखी वो आपसे कल एक्चुअली ये सब। ग्रेट। तो डेट एंड ग्रोथ मैंने इसलिए बोला था, जो मैंने रिस्क की बात की, if you have 100 rupees and if you don't want to lose 50 rupees in that 100 rupees, आपको सेफ फंड में जाना चाहिए, जहां पे आप सिर्फ 10 रुपीज ही लूज कर सके मैक्सिमम, या 5 रुपए लूज कर सके मैक्सिमम। सो दैट इज समथिंग दैट इज वी कॉल एज डेट। ग्रोथ वो होता है, डेट ग्रोथ बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ प्लान, एक्चुअली इक्विटी और डेट होता है। तो इक्विटी का जो पार्ट है, इक्विटी इज हायर रिस्क साइड, तो जहां पे आपको लूज करने का चांसेस ज्यादा है। So if you are not able to lose 50 rupees, go for debt. If you are okay to lose 30, 40, 20, then go for equity. जहां पे भी रिस्क आप ले सकते हैं, then you have to go to equity. जहां रिस्क ज्यादा है वहां रिटर्न भी ज्यादा है, आई थिंक। रिटर्न भी ज्यादा है, एग्जैक्टली। रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। करेक्ट करेक्ट, ओके, गॉट इट। So that is why awareness and this knowledge comes into picture and coaches comes into picture. आपको खुद ही इतना knowledge हो जाएगा if you are like टेकिंग सम ट्रेनिंग और समथिंग, मे बी जब मैं भी जिन लोगों को बताती हूँ, लाइक म्यूचुअल फंड बताती हूँ, एंड देन लेटर ऑन दे कैन आइडेंटिफाई विच म्यूचुअल फंड इज गुड फॉर देम। वो खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं अपना म्यूचुअल फंड। दे आइडेंटिफाई कि कितना रिस्क इसमें है, मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ या नहीं, तो दे कैन आइडेंटिफाई। एक बार आपको नॉलेज हो जाती है उस फील्ड में, देन यू कैन आइडेंटिफाई एज बाय देयर ओन। अब मैं पूरे जिंदगी उनको नहीं बता सकती, मैंने उनको बता दिया कि these are the things that you have to take care, ये सारी चीजें आपको देखनी है, आपका गोल ये है, आपका यू नो रिस्क एपेटाइट ये है, एंड अकॉर्डिंगली जो भी सूटेबल प्लान है, आजकल इतने मार्केट में अवेलेबल है फंड्स, बट आपका रिस्क और वो क्या है वो समझने के लिए यू नीड अ मेंटोर और यू नीड अ नो सम नॉलेजेबल पर्सन दैट कैन हेल्प यू विद दैट। अगर वो समझेंगे देन ओनली यू कैन गो फर्दर एंड डू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे हैं आजकल, हम लोग हर दिन एक नया मतलब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जनरेट हो रहा है। You provide any course or mentoring for this? Yes, absolutely. I total financial planning, I provide a course, and specifically अगर किसी particular topic पे चाहिए, like mutual fund, people are very much aware about mutual fund nowadays. SIPs, क्योंकि हम लोग सब लोग SIP के बारे में बात करें तो SIP is very lucrative nowadays, बहुत अच्छा हो गया है अभी ऑप्शन। तो I provide mutual fund specifically beginners के लिए, and total financial planning course if someone want, that also I'm providing currently. Okay, and you manage like it will be totally depend. Yeah, it's depending on individual. Financial planning is something that you have to plan as per your goal and risk. Currently, I have to see what are the earlier investments that you have. कई बार होता है ना कि हम कहीं जाते हैं, बैंक में गए, आज कुछ SIP आई है तो आज ये कर लो मैडम, आज वो कर लो मैडम, तो हमारे पास खुद ही इतना इन्वेस्टमेंट होता है कि हमें खुद पता नहीं होता, किसी का आइडिया ही नहीं है कि कहाँ कहाँ इतने इन्वेस्टमेंट है और क्यों किया है। उसका हमारे गोल से, हमारे रिस्क से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी हमने कर लिया है वो इन्वेस्टमेंट, है ना।
तो ये सारी चीजें पहले की पुरानी भी देखनी होती हैं। एंड देन फॉर गोइंग फर्दर, व्हाट आर योर गोल्स? 5 साल अब में आप क्या अचीव करना चाहते हो, 10 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो, या फिर अपने रिटायरमेंट में आप कैसा लाइफ चाहते हो। डिपेंडिंग ऑन दैट सब कुछ को क्लब करके देन वी सेट एंड फाइंड आउट व्हाट आर द वेज आर अवेलेबल दैट इज स्पेशली फॉर यू। Right. मे बी किसी के लिए चाइल्ड प्लान इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिनके भी बेबी हैं, अगर पेरेंट्स के साथ अगर बात करें तो चाइल्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वहां पे चाइल्ड प्लानिंग की बात आ जाती है। फिर उनके हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी स्टडीज, मैरिज एंड ऑल दैट, उसके हिसाब से फिर वी प्लान। Planning. तो होल फाइनेंशियल Right. प्लानिंग सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग है। तो श्वेता, एक्चुअली मैं रिपीट करना चाहूंगी, 3 मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने डिस्कस किए हैं। हम्म। फर्स्ट इज आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, सेकंड इज यस। म्यूचुअल फंड, एंड थर्ड इज फिक्स डिपॉजिट, यस। राइट? तो ये यस। 3 मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आरडी एंड एफडी जिसमें रिस्क एकदम लेस है, म्यूचुअल फंड लेस में नहीं, बिल है दो ही नहीं पार्ट्स लेस, है। हाँ। 99% रिस्क तो नहीं है। ये तो अगर अगर बैंक कोई बैंक हो जाता है देन बैंक ओनली बंद इट्स अ हुआ रिस्क। तो हाँ अदरवाइज एग्जैक्टली, फाइव टू नहीं तो सिक्स एफडी परसेंट आरडी आपको इज मिलना है। 100%। यस। यस। परफेक्ट, परफेक्ट। तो एंड म्यूचुअल फंड में हमने सीखा कि 2 टाइप्स है। अगर रिस्क कम लेना है तो डेट फंड में डाले, एंड रिस्क एंड रिटर्न ज्यादा चाहिए तो ग्रोथ फंड में तो इक्विटी, इन्वेस्ट कर सकते इक्विटी, इक्विटी हैं। फंड में इक्विटी फंड, ग्रोथ इज अ टाइप, हाँ ग्रोथ टाइप है। बट इक्विटी। फंड इज बेसिकली इक्विटी और डेट, एक बैलेंस भी होता है जो दोनों का मिक्सचर होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं तो दिस वाज ग्रेट, वेरी नाइस। मेरे को ऑलमोस्ट बाय हार्ट हो गया है। आई थिंक आफ्टर दिस सेशन नाइस, आई विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। ग्रेट, नाइस। So, अच्छा, फिर नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क, हाउ कैन अ स्टे एट होम मॉम और अ होम मेकर कैन सेव एंड इन्वेस्ट इफ दे आर नॉट अर्निंग? बिकॉज यूजुअली उनके माइंड में ऐसा रहता है कि मैं वैसे भी अर्न नहीं करती हूँ, तो आई डू नॉट हैव राइट टू इन्वेस्ट, और राइट या तो फिर नॉलेज, क्योंकि वो लोग नॉलेज। ज्यादा मिंगल नहीं करते, राइट? तो उनके लिए कुछ इफ यू हैव एनी टिप्स कि हाँ, ये हाउ कैन आरडी दे। वाला ऑप्शन काफी अच्छा है। लाइक सबसे पहले तो सेविंग की हैबिट होनी चाहिए। सेविंग तो वो करती हैं। आई ऑलवेज से कि जो होम मेकर हैं देर आर द बेस्ट सेवर, वो सबसे अच्छा सेव कर आई सकती सी हैं। आप माई पूरा मॉम, शी बजटिंग हैड अपने अ हिसाब से। पर्स, उसमें रखती थी वो, मतलब आपने जैसे बोला वो ड्रॉर में रखने वाला सीन, आई हैव सीन ऑफ माई मॉम। एग्जैक्टली। बट यस देन आई यस, वांट हम लोग, दैट हमारी पीपल शुड मम्मी कम भी आउट ऑफ वैसे ही इट। रखती। हाँ, राइट, बट राइट, वो उनके लिए सही नहीं है। वो उन्हें बताने वाला भी तो कोई चाहिए। लाइक दे आर राइट। सेविंग, वो ऐसे भी सबसे छुपा के सेव कर रही हैं कि कभी कुछ जरूरत पड़े तो मैं निकालूंगी। ये तब उनका मैं थॉट दे, प्रोसेस है। करेक्ट, करेक्ट, वो इसके लिए नहीं करेक्ट, कर रही कि करेक्ट। ये बढ़ेगा घटेगा काइंड ऑफ, उसका उनको कोई टेंशन नहीं है। वो इनके लिए कर रही है कि कभी इन फ्यूचर अगर मुझे हमको या मेरे माइंडसेट फैमिली को, चेंज करना है सबसे। यस, राइट, अगर मेरे फैमिली को जरूरत पड़े तो मैं निकालूंगी इसे एंड देन आई कैन गिव बिकॉज आई हैव समथिंग फॉर सेव, लाइक दैट। तो इमरजेंसी वो फंड, माइंडसेट एक, करेक्ट। ये हम लोग ही मतलब आज की जनरेशन ही चेंज कर सकती है कि नहीं, इसको बढ़ना भी है, सिर्फ रखना इज नॉट इम्पोर्टेंट। इट हैज टू बी लाइक ग्रोइंग स्टेज में होना चाहिए वो। तो वो एक चीज है। प्लस स्टे एट होम मॉम जो भी है, पहले वो या तो सेविंग जार में सेविंग करके ये कर सकती है। सपोज जो भी महीने का ये है, बिल्कुल भी अगर कोई मॉम सेव नहीं कर रही है, सपोज कई मॉम ऐसी भी होती है कि जो, ठीक है, अगर मुझे किसी ने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए दिए हैं घर चलाने के, तो मैं 10,000 में जो भी होगा सब कुछ मैनेज कर, अगर एंड ऑफ द मंथ कुछ बच गया तो उसको किसी ना किसी चीज में, या फिर इम्पल्सिव परचेज बोलते हैं उसको, जरूरत ना भी हो देन वी कैन बाय समथिंग, लाइक कभी शॉपिंग कर ली, कभी जरूरत नहीं भी है तो भी चलो ठीक है, थोड़े बच ही गए हैं तो खर्च कर लेते हैं, है ना। वैसे करने की बजाय अगर आप सेव करोगे मंथली, या फिर मैं बोलूंगी पहले ही सेव कर लो 500 रुपीज। अगर आपको 10,000 मिले तो पुट दैट 500 रुपीज इन दैट सेविंग जार, हैव अ जार, पुट इन दैट लेबल एज सेविंग जार। 500 रुपीज इनिशियली सेव कर लो, बाकी के चल जाएंगे खर्चे उसमें, एंड आई एम डैम श्योर कि चल जाएंगे, और शायद उसमें भी आप बचा लोगे वो। बट वो जो राइट। 500 हम पहले नहीं निकालते हैं ना, तो दैट्स वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। तब हमें लगता है बाद में तो कुछ बचा ही नहीं। तो जिनको हैबिट नहीं है सेविंग की, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि पुट योर सेल्फ, पे योर सेल्फ फर्स्ट। आप पूरे दिन काम करते हो, पूरे घर में काम करते हो, अपने आप को ही कुछ पे करो पहले। पे योर सेल्फ फर्स्ट, आई ऑलवेज जैसे से। ही वो मंथली वाला हमारे पास बजट आता है, फ्रॉम यस। दैट यू हैव टू रिमूव एटलीस्ट 500 या 1000, वट एवर, जिसका जो 500,000, कैपेसिटी यस, आता है। उतना आइडिया तो या, डिपेंडिंग ऑन आपको स्टे नो होम, मतलब पता राइट, चल जाता है होम मेकर को कि हाँ, कितना मुझे सेव करने से चल कितना जाएगा, या सेव फिर कर कितना सकते मुझे हैं, से। तो सेविंग हाँ, जार इज अ मस्ट।
वो एक Then हैबिट बिल्ड करने के लिए है। जिनको बिल्कुल हैबिट नहीं है करने की, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग, कि कहीं से तो शुरू करें। अगर बिल्कुल आरडी करना और वो बहुत दूर की बात है अगर सपोज, तो एटलीस्ट दे कैन स्टार्ट विथ एट द मे बी एंड ऑफ द ईयर, अगर एक साल में वो सेविंग की आदत हो गई है हर महीने की, देन यू कैन डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट और इन्वेस्ट समवेयर। एक साथ ही कहीं जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, तो हर महीने वो करने के बजाय आप एक साथ भी कर सकते हैं। बट वो हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज encourage women to build that habit, because habit सबसे important है। राइट, तो फर्स्ट सेविंग जार में मनी जमा करें, उसके बाद मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसाइड करें, बट सेविंग इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। सेविंग इज इम्पोर्टेंट। राइट, ओके। So, any financial tips you would like to give to new parents since new parents, big yeah, responsibility, of course, it's absolutely, बहुत ही बड़ी emotionally, responsibility। financially, everything is going to be like Absolutely, सब हिल absolutely, जाने वाला है उनका। So, any absolutely। planning? Yeah, यस यस, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग तो पूरी मतलब यू टर्न हो जाती है बिल्कुल बेबी आने के बाद। बिकॉज सबसे पहला तो स्टेप यही है कि उनको पूरा बजट ही रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि बच्चे आते हैं तो फिर उनके हिसाब से फिर बहुत सारी चीजें, उनके नए खर्चे, जो भी कुछ है, नए न्यू बॉर्न बेबी के इतने सारे खर्चे होते हैं, तो फिर उनको अपना रिवाइज मंथली जो बजट अभी तक चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल 10,000 था तो नाउ मे बी 15,000 और 20,000 करना पड़ेगा। तो पहले तो बजट रिवाइज करना फर्स्ट है। सेकेंड है कि न्यू गोल्स प्लानिंग। न्यू गोल्स में यू कैन से लाइक बच्चे के एजुकेशन के लिए, बच्चे की शादी के लिए, नो मे बी हायर एजुकेशन के लिए। अभी जो उनका पुराना गोल चल रहा था, मे बी समवेयर कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया था अपने हिसाब से, नाउ अब बेबी हैज कम, तो अभी उसके हिसाब से अभी और कुछ और ऐड करना पड़ेगा आपको। मंथली जो आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे थे, अभी आपको शायद 20,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर बेबी right. ऑल्सो। बेबीज का थर्ड भी इज, स्कीम्स आता है ना, लाइक इन्वेस्टमेंट, आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं उसके लिए, या फिर अपने अपने इन्वेस्टमेंट में। आखिर पैसे तो, खैर पैसे तो हर जगह लग रहे हैं ना, हर चीज में, हायर एजुकेशन हो। हाँ, ये है कि आप उसके नाम से पर्टिकुलर करना चाहते हैं तो सारी चीजें नहीं हो सकती उनके उनके नाम से। मे बी वो भी डिपेंड करता है क्या बेबी कितने एज का है, नो। तो आप ओके, अपने से ही करें। अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए, तो एज अ पेरेंट यू कैन पे, नो, हायर एजुकेशन के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि उन्हीं के नाम पे होना चाहिए, बेबी के होना नाम पे चाहिए, ही हो। करेक्ट। तो जैसे आपको अपना बस माइंडसेट होना चाहिए कि अब ये मुझे 10,000 कर रही थी तो मैं 20,000 करूंगी अब, क्योंकि मुझे बेबी के लिए भी करना है अब। तो दिस माइंडसेट शुड बी देयर। थर्ड इज यू नो इमरजेंसी फंड। जो आपका इमरजेंसी फंड, आई सजेस्ट इन फाइनेंशियल प्लानिंग, 6 मंथ का इमरजेंसी फंड इज ऑलवेज देयर, वहां पे होना ही चाहिए आपके पास। ओके, उस इमरजेंसी फंड में और बेबी आने के बाद और ऐड करना चाहिए। क्यों, अभी तक 6 मंथ का था, 1 मंथ का और आप ऐड करके रखें इमरजेंसी। दैट शुड बी लिक्विड, योर सेविंग्स बैंक अकाउंट में पड़े होना चाहिए ये पैसे, इमरजेंसी फंड वाले, कि कभी भी आपको जरूरत ओके, पड़े। इसका नाम ही है इमरजेंसी फंड, वी आर डूइंग इट फॉर इमरजेंसी पर्पस। कभी भी जरूरत पड़े तो यू कैन, तुरंत आप निकाल सके उस पैसे को। सो इफ यू आर लाइक 6 मंथ के लिए इमरजेंसी फंड आपने किया है, तो एड 1 more month और 2 more month अमाउंट इन दैट इमरजेंसी फंड। फोर्थ है आपको नो हेल्थ इंश्योरेंस। आप कई बार क्या होता है, कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस रहता है या फिर हम कहीं बाहर से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें बेबी को ऐड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर, फॉर फ्यूचर पर्पस, ओके। हेल्थ इंश्योरेंस अब में। बट क्या एज के बाद हम बेबी को ऐड कर सकते हैं? न्यू ये बॉर्न बेबी जीरो को? एज से कर सकते हैं, यस यस, न्यूबॉर्न बेबी को भी ऐड कर सकते ओके, हैं। तो ओके, ये हेल्थ इंश्योरेंस हो गया फोर्थ। फिफ्थ इज आपका अपना टर्म इंश्योरेंस, जो आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है अपना, ओवरऑल जो टर्म इंश्योरेंस है, कि खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को कितने पैसे मिलने चाहिए, वो अमाउंट भी अब बड़ा होना चाहिए। बिकॉज नाउ चाइल्ड हैज कम, तो आपने हो सकता है पहले से लिया है, नहीं लिया है, तो आई हाईली रिकमेंड दैट एनी टर्म प्लान शुड बी देयर। सबको लेना चाहिए टर्म प्लान। एंड बेबी आने के बाद तो वो टर्म प्लान का जो अमाउंट है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इफ यू आर नॉट एबल टू, अगर इतने एक ले लिया है तो मे बी यू कैन ऐड 1 more, सो दैट बाकी फैमिली की पूरी नीड आप, सी टर्म प्लान हम इसलिए लेते हैं, इसलिए नहीं लेते कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो मतलब हम हैं तो ठीक है, मतलब 1 करोड़ का मुझे, या फिर जितने भी का लिया है इतने की मुझे सिक्योरिटी है। इसलिए है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली की लाइफ वैसे ही चलनी चाहिए जैसे मेरे रहने पे चलती है। या फिर अगर मैंने रहते रहते ये प्लान किया है कि माय बेबी इज गोइंग टू यू नो स्टडी अब्रॉड, तो अगर मैं ना रहूं तो भी वो अब्रॉड पढ़ने जाना चाहिए, उतने का टर्म प्लान आपको लेना चाहिए।
वो right, सारी चीजें ध्यान में रख के, मतलब गोल तो आपने जो बनाया है एज अ पेरेंट, दैट इज ओके, तो उसी गोल पे स्टिक रहे। ऐसा ना हो कि अगर किसी मेंबर को कुछ हो जाता है तो दैट गोल इज थोड़ा इधर उधर हो जाए। और इसके लिए भी बहुत फीमेल का वो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस होना, वुमेन का फाइनेंशियल लिटरेट होना। लाइक अगर हस्बैंड, अगर ऐसे में अगर हस्बैंड को, किसी हस्बैंड को, मेल मेंबर को कुछ हो जाता है, इफ वुमेन आर नॉट अवेयर अबाउट द फाइनेंसेस, कैन यू इमेजिन कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड right. पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे हैं उनको, तो कितना कुछ हो सकता है प्रॉब्लम उनको टू डील, वो सारी सिचुएशन डील करनी, बिकॉज इमोशनली तो दे आर नॉट स्टेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके बाद Correct. फाइनेंशियली भी अगर वैसा कुछ हो जाए तो इट्स वेरी बैड प्लेस टू बी इन। तो दैट इज व्हाई देयर आर सो मेनी रीजंस जहाँ पे आपको सीखना, जिसके कारण से आपको सीखने की जरूरत है। ये सारी चीजें तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, वी आर ये नॉट लास्ट वाला रियलाइजिंग बात एट आपने दैट बहुत पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक सब ठीक राइट, चल रहा है, ठीक चल रहा है। जब बैड करेक्ट, टाइम्स के बारे में हम सोच नहीं पाते प्रॉपरली, तो अगर वो सोच के अगर आगे काम करें तो आई थिंक थोड़ा ज्यादा ये होगा, it would बेहतर be होगा। great. Yes, absolutely. It was okay. Next, what I would like you to say is stay-at-home mom ka we already discussed. How या can the working women or earning women can start investing better? I think they might be doing something already, हम्म। but any tips for them, like how can they start investing better? What amount of ओके, salary they या should श्योर, start investing? Yeah, श्योर। If, see, the basic rule that I am giving to any working woman is 50-30-20. Like if you are earning 1,000 rupees, keep 500 rupees for your 50%, means 500 rupees for your basic necessity, like roti kapda makan ke liye, and the next 30, जो 300 rupees है, next 30%, 300 rupees for your desires, dine out, shopping, or anything, desires के लिए दीजिए, and then 20% you should save. That 200 rupees should you should save. If you are not able to build that saving habit yet, I would say reverse that amount. Start with 20%. Save that 20% first. 200 rupees should go to your SIP, RD, whatever it is. कोई भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप सेट कर सकते हैं, लाइक कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स डिपॉजिट हो, आरडी हो, जो भी। आरडी बेसिकली अगर मंथली इन्वेस्ट करना है तो आरडी में कर लीजिए। 200 रुपीज महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। नाउ यू हैव 800 रुपीज ओनली। डू वट एवर यू लाइक। चेंज आप कर सकते हो इधर उधर, कभी डिजायर्स में ज्यादा खर्च हो गए, कभी बेसिक नेसेसिटी में ज्यादा खर्च हो गए। तो बेसिक रूल इज 50-30-20, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। नाउ अब ये बात ये आती है कि वर्किंग वुमन अगर आप 40s में हैं, तो दिस रूल इज नॉट गोइंग टू अप्लाई ऑन यू, बिकॉज यू हैव नॉट डन एनी सेविंग्स, यू आर इन 40। अगर आप 20% ही सेव करोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैव लाइक अ गुड रिटायरमेंट। आगे की लाइफ आपकी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। So if you are in right. 40s, you have to, save more, maybe 40% of your salary or 50% of your salary. If you are in 20s or 30, do that. 50-30-20 is absolutely fine. So in case you are in And 40, start so invest. desire wala Yeah. part you have to cut down a little from हाँ, what you are डिजायर actually saying. नेसेसिटी वो, हाँ, सेविंग का पार्ट बढ़ाना होगा काइंड ऑफ, अगर आप यही लाइफस्टाइल चाहते हो Right, तो। समटाइम्स है right, ना कि हमें बस थोड़ा भी मिलेगा तो चलेगा, तो दैट्स फाइन। अगर आप मैं जितनी बात कर रही हूँ ये है कि अगर आप अभी जिस लाइफस्टाइल में हो वही स्टाइल आपको आगे भी चाहिए, लाइफस्टाइल, तो सेम true, लाइफस्टाइल की, क्योंकि right. साथ साथ महंगाई भी बढ़ने वाली है। आपको आज जो 100 रुपए की चीज है आपको 200 रुपए में आगे जाके मिलने वाली है 10 साल बाद। तो उसी हिसाब से आपको Correct. सेविंग भी ये करनी पड़ेगी ना, सेविंग भी आपको उसी हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। तो लाइक दैट। So they have to follow 50-30-20 rule. यस, 50% of their savings for the basic और necessities, बेसिक। 30% on their wishes, their goals, their desires, and यस, 20% savings. But if यस। we are above 40, then we have to cut down on our desires Yeah, I'm just giving and example 40, like maybe it could be 50, 35. So fifty or इस 40. जो percentage है, Maximum it amount. depends. Yeah. Yes. And fast Maximum amount saving they have to also invest. is, yes, fast saving भी देखना is important. Like if you're in 30s, you have already invested पहले, अब यहाँ पे हम तो normal बातें कर रहे हैं कि those who have not invested, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बातें कर रहे हैं। अगर इफ दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड देन 50-30-20 इज फाइन। अगर आप 20 से ही इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स यू आर ऑन द ट्रैक।
Yeah. Okay, great. So, सो वेल्थ, और एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, लाइक वेल्थ की हम जहाँ तक बात करते हैं, लाइक ड्रॉर वाली बात जो हमने कही, कई वुमेन बहुत सारे पैसे अपने पास ही रखती हैं। तो वेल्थ क्रिएशन इज नॉट दैट कि आप ड्रॉर में पैसे सेव करके रखो। वेल्थ क्रिएशन इज समथिंग, अगर आप फोर्टीज में हैं अभी या थर्टीज में हैं अभी, तो आप इतना इन्वेस्ट करो अभी, दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न वाले फंड में इन्वेस्ट करो, सो दैट कि आपको 60 इयर्स तक काम नहीं करना पड़े। वेल्थ क्रिएशन का मतलब हम कई बार ये समझ लेते हैं कि हम अकाउंट में अगर 50 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो दैट इज आवर वेल्थ। नो, दैट इज नॉट योर वेल्थ। ओके, टू थिंग्स इन वेल्थ क्रिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो मनी का वैल्यू है वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। जो 50 लाख आज का है वो आगे जाके शायद 1 करोड़ हो जाए, मतलब 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़े आपको सेम 50 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक तो मनी का वैल्यू हो गया, प्लस अगर आप अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करोगे देन वेल्थ क्रिएशन बहुत जल्दी हो जाएगा। सो यू कैन टेक रिटायरमेंट, मे बी इन 50s और 55। You don't need to work for like 60 or 70 like that. So try to build your wealth as early as possible. जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतना जल्दी वेल्थ क्रिएट होगा, एंड जितना जल्दी वेल्थ क्रिएट होगा and उतनी उतना जल्दी आप जल्दी रिटायरमेंट रिटायर ले हो लोगे, सकते हैं. एंड नाउ यू कैन चिल ऑन Perfect. एनी बीच और समथिंग। यस, Okay, okay. This एब्सोल्युटली। was nice one. Yeah. Yeah. So, Shweta, anything you would like to add from your side? And we can take a few questions from audience also if they would Yes, like yes, to ask absolutely. questions. Yeah, one last the same thing, that women has to believe that they can do it. Okay, first of all, yes, you can do it. It's not a rocket science thing. You can learn, कुछ चीजें सीखनी है आपको, अपने गोल बनाने हैं, दैट यू आर लाइक अभी भी पता होगा बट इन्वेस्टमेंट का पार्ट शायद ना उतना पता हो। तो बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फाइंड अ मेंटर, फाइंड अ कोच, लर्न समथिंग। इट्स वेरी बेसिक। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और सीधे जाके स्टॉक मार्केट में लगा दो एंड यू कैन लूज ऑल योर मनी। नो, नॉट लाइक दैट। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सेफ साइड से आप इन्वेस्ट करें। ऑफ कोर्स मैं पहले रिस्क कैपेसिटी देखती हूँ, देन ओनली आई सजेस्ट समथिंग। उसके पहले तो Hmm. आई एम नॉट सेइंग अ वर्ड कि आपको यहाँ लगा दो वहां लगा दो। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट आई एम नॉट suggesting without knowing your risk taking capacity, not possible. Second, we need to educate our own, like family में अपने जो family के अंदर men हैं, male members, they need to educate that her participation is very much required in all the financial decisions, be it like your own retirement planning, financial planning or child planning, anything. Men को educate करना, because men are the biggest supporter। फैमिली में जो मेन है उन्हीं का सपोर्ट सबसे पहले रिक्वायर्ड है इस चीजों के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल मेन कि सपोर्ट योर लाइक ब्रदर, सॉरी सिस्टर, मदर, वाइफ, Sisters, एंड mothers, encourage them wives. to learn। यस, और कभी पूछने Yes. आए तो डोंट गेट इरिटेटेड। उनको थोड़ा सिंपलेस्ट मैनर में समझाने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार नहीं समझ रही तो दूसरी बार कीजिए। नथिंग टू कुछ इरिटेट होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। they don't know about things, that's why she is asking, or if they are eager to learn, so you should encourage. As a man you should encourage it, at least she is like coming forward and learning things। so yeah, और अपने So अंदर तो वो I would like to कॉन्फिडेंस tell लाना you बहुत one जरूरी thing. है। या I would like to tell you one thing. मैं ऐसी थी कि चेक पे साइन भी करना है तो आई यूज टू गेट अफ्रेड बिकॉज मैंने कभी हम्म। किया नहीं था. दैट काइंड ऑफ अ यस। गर्ल आई वाज. सो माय डैड टोल्ड मी, बेटा नाउ यू हम्म। यू हैव स्टार्टेड अर्निंग सो यू शुड हम्म। टेक एवरीथिंग इन योर हैंड. तो वो चेक साइन करने से लेके SIPs में इन्वेस्ट करना क्या करना, ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग वेरी पेशेंटली. He is a ग्रेट। kind of a person, like he is a salaried person right from 18 years of age. He is now हम्म। 62 plus. तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड. उन्होंने कल अपना लेक्चर भी अटेंड किया था. So he is वाह। very much interested in all this. So the one thing which you are trying to say that they should motivate or encourage us. For me, my dad is that person who has हम्म। encouraged or motivated me to take things into my own hands. Still, I am not यस। like that. मैं अभी भी 50% उन पे depend करती हूँ. But yeah, that कोई plays a बात नहीं, बट major role एटलीस्ट in यू आर our ऑन द life. राइट ट्रैक। नो, एटलीस्ट यू आर एबल टू लर्न Yeah, नाउ। अभी आप encouragement
आ गया आपके अंदर, you are like believing that you can do. And see, yesterday also I told you, it's so beautiful to see if you are a mom of any like a daughter, कितना अच्छा होगा अगर आप अपनी डॉटर को ये सारी चीजें बताओगे, and our daughter will be more stronger financially. How beautiful is that? It's all the power that we women have in like in us only. If we can learn, we can support other women, we can teach our daughters, mother, like that. So that's Absolutely. why it's very important. You are not learning for yourself, you're learning for, maybe think in a bigger way. You're learning for society, you're learning for your own daughter. You can support other women. It's beautiful. Absolutely. Yeah. Okay, Shweta. So, uh, Yeah, if you can anything take else any from the questions. audience side? Yeah, no, my questions are like I'm done almost. Okay, okay, great. Yeah. So, any questions from the audience? I'll just check if anyone has asked anything. Meanwhile, the session was very nice. Even the yesterday's session was Thank you. very great. And I would like to thank all the people who joined in and extremely sorry for yesterday It due to the happens. technical Technical glitches. glitches are not on our hand, Yeah, no, so it's our okay. hand. Right, absolutely. We can So, yeah, only Shweta. try. Yeah, Jyoti just joined in. Mhm. You're saving this live, Okay, no, Shweta. on So, your yeah, page. yeah, I'll be saving it. Oh, Whoever has missed it can go through the live and ask your questions in the comment box. sure, sure. Sure. You Okay? can DM me also if you have any issues or something, any Sure. And questions. you would like to say anything about your course, Shweta? How can they reach out to you or Yeah, for they the can directly coaching or DM me. I will explain because it's very difficult to say, one by one that this course is suitable for you. I don't know, everyone's requirement. What they are looking for, which type of okay. investment they are looking for, what risk they are having. So I cannot say anything right now. But if anyone have any issues, just DM me. I'll then Okay. check with So them. you provide mentoring, coaching, courses, and portfolio management. Everything like all round, right? Yes, yes. Okay. So people, you can reach out to her for any kind of information you require in financial planning. She is the right person to guide you. And you would like to Thank say you. a handle's name, Shweta? Yeah, my handle is Shweta underscore investing coach. Right. Okay, Shweta. So it was very great to have you here on this platform. Thank you Educate so me, much, Priya. educate my friends, my audience. Great. I would And I love would to see that. surely love to talk to you on some other topic also as well in future. Of course. Sure, sure. Anytime, anytime. Sure. Okay. Chalo. So Thank you so we much. would Thank end you this. so much. Yeah. Yeah, yeah. Okay, Okay, Shweta. bye-bye. Thanks. Bye. Thank you for having me. Bye.